Good morning, students. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atme Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is factorization. So, student, today is our new chapter, that is factorization, and in this chapter we learn what do you mean by factorization. And student, you already learned in previous classes about factors. Okay, and when we go for factors of any number, you are very familiar with prime factors. Okay, so what is prime factors? We know that factors of natural number, when we want to find factors of natural number, so we have easily find, see here, 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 15, एंड अगेन 15 को आप लिख सकते हैं 3 into 10. Okay, sorry, 3 into 5. Okay, so you can write 2 into 3 into 5. Okay, so this is the factor of 30. So what is the main factors of 30? So you can write 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the factor of 30. Okay, of these हम बोल सकते हैं 2 3 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स. अब यहाँ पर 2 3 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं. 6 is not a prime number. 10 and 15 and 30 is not a prime number. Okay, understand? So we can say that 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे. इफ यू वांट टू टेल अबाउट what is prime factors of 30, so you can write 30 is equal to 2 into 3 into 5. This is the prime factors of 30. Okay, am I right? आप लोग लास्ट क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं. Okay, so when we talk about prime factorization of any number, so we can easily factorize that number in prime factors. Now what is prime numbers? So when the number having factor only one and number itself, it's called a prime number. So what is first prime number? So you can say that 2 3 5, then 7 is a prime number because see 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 and 2. 1 into 2 लिख सकते हैं आप. 3 के फैक्टर्स 1 and 3. 5 1 and 5. 7 1 into 7. बट 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 and 4, बिकॉज 4 को आप 2 into 2 भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा. वैसे ही अगर 9 की बात करें तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 into 3. सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, ऐसा नंबर जिसके ओनली वन और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर्स हैं. सो वी कैन से दैट देट आर प्राइम नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड? So student, this way we can factorize any number. Okay, and we have to if we want to prime factors any number, so we can do it. Okay, in 5th 6th 7th standard we already learn about factorization, how to do the factorization, how to do prime factors. Okay, so I hope you all are understand what is prime factorization. Now in this chapter we have learned another concept of factorization, that is factors of algebraic expression. Now algebraic expression से भी आप लोग हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था what is algebraic expression, and you all are know about algebraic expression. means algebraic expression क्या होते हैं. अगर हम algebraic expression के बारे में बात करते हैं तो algebraic expression में एक वेरिएबल होता है, the combination of variable and constant is called an algebraic expression. Okay, now let's see. अगर मैं बात करूँ 5xy की, जैसा यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ 5xy is an algebraic expression, so when we talk about factorization of this number, so 5xy का factorization क्या होगा. 5 is a prime number. Now x into y, it's a factorization of 5xy. ओके, सो 5xy जो बना है वो किस किस से बना है, इट इज़ एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर. मतलब 5xy के फैक्टर्स क्या हुए, 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ एवरी टर्म. 1 ऐसा नंबर है जो हर एक टर्म का फैक्टर है. Okay, as in the case of natural number, unless it is especially required, we do not show
वन एज अ सेपरेट फैक्टर फॉर एनी टर्म. सो हम उसे ओनली लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ओके, अंडरस्टैंड. सो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम कोई भी नंबर को किस टाइप से लिख सकते हैं, फैक्टर्स में लिख सकते हैं. उसे हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं, हम एक्सपांडेड वैल्यू भी बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सपोज हमारे पास कोई और दूसरा नंबर है, जैसे हम बात कर लें 3x इंटू एक्स प्लस 2. अब ये कोई नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसे फैक्टर्स करना चाहती हूँ, इट कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये हमें दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, अब अगर मैं इसे बताना चाहूँ कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ इसका फैक्टर है 3x and x plus 2 is the factor of that number. Okay, understand. The factor 3x and x plus 2 are irreducible factor of 3x plus into x plus 2. ओके, मतलब ये फैक्टर्स के अलावा इसके कोई फैक्टर्स और नहीं हो सकते. ओके, सिमिलरली अगर और कोई सा हमारे पास में एक्सप्रेशन है, सपोज अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 10 इंटू 10x yz, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. बट यहाँ पर जो 10 है इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं, इसे आप और ब्रेक कर सकते हो. क्या लिख सकते हो आप 10 को 2 इंटू 5. नाउ इट्स विल बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सो हम किसी भी नंबर को फैक्टर्स मीन्स उसके ब्रेक करके easy वे में लिख सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन राइट एनी नंबर इन easy way. Now what is factorization? So when we factorize an algebraic expression as we write it as a product of factors. So these factor may be number, algebraic variables और algebraic expression. ये कुछ भी हो सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो एक्सप्रेशन लाइक 3xy, 5x square y, 2x y plus 2 and 5y plus 1 x plus 2 are already in factors form. अगर इनकी बात करें तो ये फैक्टर्स फॉर्म में है. देयर फैक्टर कैन बी जस्ट रीड ऑफ फ्रॉम देम वी आर ऑलरेडी नो. मीन्स हमें क्या करना है 3xy. सो हमें इसको खाली रीड आउट करना है 3x and y. ओके, 5y plus 1 मीन्स इसके फैक्टर्स हुए 5 and y plus 1 और x plus 2. ओके, अंडरस्टैंड. ऑन द अदर हैंड कंसिडर एक्सप्रेशन, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें 2x plus 4, सो इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं बिकॉज हमें इसमें दिख रहा है इन 2x plus 4. व्हेन वी सी द 2x plus 4, इन दोनों में ही आपको 2 कॉमन 2 दिख रहा है. इसको आप लिख सकते हैं 2x और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2. अब ये 2 जो है वो दोनों में कॉमन है. ओके, सो अगर हम 2 बाहर निकाल लें और मल्टीप्लिकेशन का साइन बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा x प्लस 2. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज सिस्टमेटिक, मतलब हम इसे सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं. ओनली हम क्या कर रहे हैं, उसे सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं. सपोज 2x प्लस 4 है और 3x प्लस 3y है. तो 3x प्लस 3y में हमें 3 कॉमन दिख रहा है तो आप उसे बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे अंदर x प्लस वाई. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ओनली x प्लस वाई. ओके, सो आपने क्या किया, ओनली आपने उसे सिस्टमेटिक मेथड में लिख दिया, सिस्टमेटिक वे में लिख दिया. ओके, अंडरस्टैंड. अब नाउ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन दिख रहा है वो आप बाहर निकाल लेंगे, जैसे हमने 2x प्लस 4 में किया था. ओके, 2x प्लस 4 में हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2. सो यहाँ पर दोनों में 2 हमें कॉमन दिख रहा है, हमने 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ओके ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Okay student, now
लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल 5xy प्लस 10x। अब इस एग्जाम्पल्स में आप इस एग्जाम्पल में आप हर एक टर्म को पहले तो फैक्टराइज कर लेंगे। 5xy को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 10x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप दोनों को फिर से वैसा कि वैसे ही लिखते हैं, आपकी जो इक्वेशन है उस हिसाब से मीन्स 5xy प्लस 10x, तो 5xy की जगह उसके फैक्टर्स लिख देंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड सेम हियर 10x की जगह पर आप उसके फैक्टर्स लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू 2। अब यहाँ पर आपको 5 इंटू एक्स और मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप उसे बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 5x आपने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा हमारे पास में y प्लस 2। ओके, सो दिस इज़ माई आंसर। हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। ओके, इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 1। सो इन एग्जाम्पल नंबर 1 फैक्टराइज करना है हमें 12a² प्लस 15ab²। सो हम अलग अलग टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले 12a² को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को पहले तो हम देखेंगे बिकॉज 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो हम 12 को और ब्रेक कर सकते हैं। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जिस बच्चे को इस टाइप से नहीं समझ में आता है वो इस टाइप से भी प्राइम फैक्टर्स कर सकता है। ओके, सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, एंड 15 के फैक्टर्स भी आप कर लीजिए इस हिसाब से 3 इंटू 5। ओके, सो जो फैक्टर्स हुए उसे आप लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ओके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर है तो कितनी बार आएगा ए, 2 टाइम्स इंटू बी। ओके, वैसे ही सेम बीच नीचे की साइड आएगा 15ab²। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। नाउ ए इंटू बी अब इसे इक्वेशन में लिख देंगे कॉमन निकालने के लिए, बिकॉज हमें दिख रहे हैं इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। 3 कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है एंड बी कॉमन दिख रहा है। तो जो जो कॉमन दिख रहा है वो हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, दोनों में से। ओके, और जो बचेगा उसे हम एक ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 इंटू ए फर्स्ट वाली टर्म में, एंड सेकेंड टर्म में बचेगा 5 इंटू बी। ओके, क्योंकि हमें 3a और 3 इंटू ए इंटू बी हमें बाहर निकाल लिया है हमने, तो हमारे पास अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म में ओनली 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी। ओके, सो दिस इज अवर प्राइम फैक्टर्स, रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आपको कॉमन निकालना है। 10 के फैक्टर्स करिए, 18 के करिए एंड 14 के करिए। 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। Okay, so you have to first of all you have to complete the prime factorization. Okay, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आता है। अगर आप प्राइम फैक्टर्स नहीं करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। सो यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड। सी हियर, जो कॉमन फैक्टर्स है वो कॉमन निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल करके उसका आंसर लिख देंगे। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारे कॉमन निकालने के लिए, मीन्स हम जब फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइज करते वक्त कॉमन फैक्टर्स हम बाहर निकाल करके उसका आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। ओके, द सेकेंड मेथड, आवर सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुप करना, टर्म्स को रीग्रुप करना मीन्स ग्रुप बना करके भी आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, So, see the example 2xy plus 2y plus 3x plus 3। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में आप इसे दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। या तो आप x वाली टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, y वाली टर्म को एक साथ रख लीजिए, बट यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म जो दिख रही है वो उसमें x भी है और y भी है। ओके, सेकेंड टर्म में ओनली y है एंड थर्ड टर्म में ओनली x है। ओके, ये तो हुई बात हमारी किसकी, हमने जो बात करी वेरिएबल्स की।
नाउ कोफिशिएंट भी देख करके आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। सी फर्स्ट वाले में आपको 2 दिख रहा है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 3 है। तो आप ग्रुप उनके कोफिशिएंट को देख करके भी बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप आपने बना लिया 2xy प्लस 2y। यहाँ पर तो चूंकि पास पास दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर उन्हें पास पास लिख सकते हैं। ओके, सो हियर ये क्या हो गया 2xy प्लस 2y। अब आप इसे फिर से वैसे ही फैक्टर्स करेंगे, आप उसे कॉमन आप उनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू वाई कॉमन दिख रहा है, तो आप 2y कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस 1। ये तो होगी फर्स्ट 2 टर्म्स की बात। ओके, नाउ अनदर 2 टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया 3 कॉमन निकाल लिया है, और 3 को अंदर क्या बचा x प्लस 1। अब नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेप में फर्स्ट टर्म में भी x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, सेकेंड में भी x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। ओके, सो व्हेन यू वांट प्रॉपर आंसर, सो यहाँ पर देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है। अगर आप x प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 2y प्लस 3। ओके, 2y प्लस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। ओके, अंडरस्टैंड? So this way you can regroup any number. Okay, let's see examples. One more example. Example number 3. Okay, now here see 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. सो यहाँ पर भी आपको एक्स वाई की एक टर्म दिख रही है, एक वाई की है, एक एक्स की है। ओके, सो हियर हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 2 टर्म को अगर लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म लेकर के अगर हम उसे फैक्टराइज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेकर के भी हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट 2 टर्म लेंगे अगर हम 6xy माइनस 4y, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें इजीली दिख रहा है वहाँ पर 2y कॉमन है, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। वैसे ही सेकेंड 2 टर्म्स में से अनदर 2 टर्म्स में से हमें दिख रहा है 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। नाउ इन दोनों टर्म्स में हमें 3x माइनस 2 इस कॉमन टर्म हमें दिख रही है, तो 3x माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास अंदर बचेगा 2y माइनस 3। ओके, so this way you can solve the question. Okay, so this is our example number 3rd. So today we learn about factorization and how to factorize any algebraic expression. ओके, सो हमने इसमें 2 मेथड देखी, एक तो कॉमन निकालने वाली, दूसरी मेथड हमने कौन सी देखी बच्चों, रीग्रुप करने के लिए। ओके, सो हम इजी वे में किसी भी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं और उसे रीग्रुप करके उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, अगर हमारा सिंपल नंबर होता है तो हम उसे प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, बट ये सिंपल नंबर नहीं होगा अगर, तो हम क्या करेंगे, उसे रीग्रुप करेंगे और उसके उसके फैक्टर्स कर लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको 2 टर्म्स दिए हैं 12x एंड 36। सो आप 12x को आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स, 12 के आप फैक्टर्स कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 36 के फैक्टर्स भी निकाल लीजिए। ओके, 36 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 3। ओके, अंडरस्टैंड? और x आपका जो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 इज़ द कॉमन टर्म। ठीक है, इनमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 12 इज़ माई कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट गिवन क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा कॉमन वो क्या रहेगा 12।
नाउ सेकेंड का भी ऐसे ही निकालेंगे आप। सेकेंड का जो हमारा कॉमन टर्म होगा बहुत इजी है, आपको खाली कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इनमें से। ओके, जैसे 2y और 22xy। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2y और 22xy में अगर हम 22 के फैक्टर्स करते हैं सो वो होगा 2 इंटू 11। सो 2 इंटू वाई और 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। सो क्या कॉमन दिख रहा है? 2y। यहाँ भी 2y है, सो 2y इज़ माई कॉमन फैक्टर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 7 हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेना है विथ द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हमने एग्जांपल्स करे हैं उसके हिसाब से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट and question number second you have to do in your notebook. Okay, so today's homework is question number first and question number second. Okay student, so you complete all the question in your notebook. Today we will learn about factorization, how to factorize any algebraic expression with the help of common factors and with the help of regrouping. Okay, so today we learn these two methods. Okay student, so today you have to complete question number first and question number second in your notebook. This is your homework. Today's homework is question number first and question number second. Okay, and if you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay student, have a good day.